Hello students, today we are going to discuss P series test. P series test क्या है? Suppose आपके पास ये series है sigma 1 by n raised to power p where n goes to 1 to infinity. This series is said to be P series क्योंकि इसमें 1 by n की पावर क्या है यहाँ पे p, तो इसलिए इस series का नाम क्या रखा है P series. And this series converges or diverges depending upon the value of p. p की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि ये सीरीज कब कन्वर्ज करती है और कब डाइवर्ज करती है. ठीक है. सो नाउ if you have this series 1 by n raised to power p where n goes to 1 to infinity, this series converges if this power p is greater than 1 and this series diverges if p is less than equal to 1, where p is what? It is any number. It is not necessarily an integer. कुछ भी नंबर हो सकता है. ठीक है. Now let's prove this result. First we take the first case. First case is when p is greater than 1. जब भी हम किसी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लेते हैं, है ना. तो वी सपोज Sn इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज 1 by n raised to power p. फाइन. अब हमें पता है ये जो सीरीज है 1 by n raised to power p, here n is varying from 1 to infinity. It means this series is always a positive term series. ये सीरीज क्या बनेगी? पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी. और अगर ये सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो ये कन्वर्ज और डाइवर्ज कब करेगी? अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव होगा, देन दिस सीरीज कन्वर्जेस, है ना. अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव होगा, इसका मतलब ये जो सीरीज होगी वो क्या करेगी? कन्वर्ज. और अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव नहीं होगा तो ये क्या करेगी? डाइवर्ज. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो या तो पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्ज करती है या वो डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी पे. और वो किस पे डिपेंड करता है? इस सीरीज के सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे. अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव है तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, और अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव नहीं है तो ये सीरीज डाइवर्ज करेगी. फाइन. सो नाउ लेट्स चेक कि अगर p 1 से बड़ा है तो उस केस में इस सीरीज के जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो बाउंडेड अबव है या नहीं. ठीक है. अब मैं इस सीरीज में, पहले तो ये सीरीज है क्या? 1 by n raised to power p. दिस इज नथिंग बट 1 raised to power p plus 1 by 2 raised to power p and 1 by 3 raised to power p and so on. ठीक है. सबसे पहले 1 by 1 raised to power p is nothing but 1 and 1 by 2 raised to power p plus 1 by 3 raised to power p. इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे. As we all know 3 is greater than 2, then obviously 3 की पावर अगर मैं ऐसा नंबर करूं which is greater than 1, then obviously 3 raised to power p is also greater than 2 raised to power p. ठीक है. Now 3 raised to power p अगर 2 raised to power p से बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल 1 by 2 raised to power p से क्या होगा? लेसर. and 1 by 2 raised to power p is obviously equal to 1 by 2 raised to power p. Now sum of these two is obviously less than sum of these two. So this sum is less than 1 by 2 raised to power p plus 1 by 2 raised to power p. Now if I take the LCM, so it is nothing but 2 by 2 raised to power p, which can further be written as 1 by 2 raised to power p minus 1. Now I take the next terms as 1 by 4 raised to power p, 1 by 5 raised to power p, 1 by 6 raised to power p and 1 by 7 raised to power p. पहले हमने एक टर्म ली, फिर उसी Sn में से हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स ले ली, फिर हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम ले लिया. ये केस से लेसर होगा, ये चेक करते हैं. ठीक है. हमें पता है 5 इज ग्रेटर देन 4, तो 5 रेज टू पावर p इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4 रेज टू पावर p, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज लेस देन 1 by 4 रेज टू पावर p. ठीक है. सिमिलरली 6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4, तो जैसे हमने 5 के लिए किया वैसे ही 6 के लिए क्या आ जाएगा? 1 by 6 raised to power p is less than 1 by 4 raised to power p. And similarly 7 is greater than 4, तो
Similar way से we can write 1 by 7 raised to power p is less than 1 by 4 raised to power p. It means this is less than first term तो as it is plus ये किससे lesser है 1 by 4 raised to power p से. Next term is again less than 1 by 4 raised to power p और ये भी किससे lesser है 1 by 4 raised to power p से. So it is nothing but 4 upon 4 raised to power p which is equals to 1 by 4 raised to power p minus 1. एक पावर कम हो गई डिनोमिनेटर में. और we can write it as 2 square raised to power p minus 1. Or we can write it as 1 upon 2 raised to power p minus 1 the square. So what we finally get 1 by 4 raised to power p plus 1 by 4 raised to 5 raised to power p plus 1 by 6 raised to power p plus 1 by 7 raised to power p is less than 1 by 2 raised to power p minus 1 the square. ठीक है. Now let's see what we are doing. हमने फर्स्ट स्टेप में कितनी टर्म्स ली? एक टर्म ली. एक टर्म का मतलब वी हैव टेकन 2 रेज़ टू पावर 0 टर्म्स. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1. जब हमने सेकंड स्टेप किया तो सेकंड स्टेप में हमने 2 टर्म्स ली यानी कि 2 रेज़ टू पावर 1 टर्म्स. जब हमने थर्ड स्टेप किया तो उसमें हमने 4 टर्म्स ली यानी कि 2 स्क्वायर टर्म्स ली. सो फर्स्ट स्टेप में वी हैव टेकन 1 टर्म, सेकंड स्टेप में वी हैव टेकन 2 टर्म्स, थर्ड स्टेप में वी हैव टेकन 2 स्क्वायर टर्म्स. तो अगर मैं nth स्टेप में बात करूं तो कितनी टर्म्स आएंगी? थर्ड स्टेप था तो 2 स्क्वायर, एक पावर 2 की कम थी जितना नंबर स्टेप नंबर था. और अगर मैं सेकंड स्टेप में बात करूं तो मैंने 2 रेज़ टू पावर 1 टर्म्स ली थी. तो अगेन जितना स्टेप नंबर है उससे एक कम 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स ली. तो यानी कि यहाँ पर भी कितनी टर्म्स आएंगी? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 टर्म्स आएंगी. बट जो वो टर्म्स आएंगी वो कैसी होंगी, है ना? यहाँ पर जो टर्म्स आई वो हमारी कैसी थी? अगर हमने 2 रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1 टर्म ली तो इसकी फर्स्ट टर्म कैसी थी? दैट इज 1 by 1 raised to power p, or we can write it as 2 raised to power 0 raised to power p. ठीक है. एंड सेकेंड स्टेप में जो हमारी फर्स्ट टर्म थी दैट इज 2 raised to power 1 raised to power p. और जब हम थर्ड स्टेप में गए तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 2 square raised to power p. तो ऑब्वियसली n माइनस 1 nth स्टेप में हमारी फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 रेज़ टू पावर p. ठीक है, एनालाइज करो, इसी चीज को जनरलाइज करो. यहाँ पे 2 स्क्वायर टर्म्स ली थी तो फर्स्ट टर्म भी हमारी क्या थी इसमें डिनोमिनेटर में? 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर p. यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 टर्म्स ली थी, 2 टर्म्स ली थी तो फर्स्ट टर्म भी क्या थी? 2 रेज़ टू पावर p. तो जब हम यहाँ nth स्टेप में 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 टर्म्स ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारी ये फर्स्ट टर्म भी क्या होएगी? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 रेज़ टू पावर p. नेक्स्ट टर्म कितनी टर्म्स आनी है? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 टर्म्स आनी है. तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 1 रेज़ टू पावर p. एक एक ही ऐड हो रहा है ना. ठीक है, प्लस 1 बाई 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर p एंड सो ऑन. अब ये वाली टर्म देखो कि लास्ट टर्म किस टाइप की आ रही है हर स्टेप में. यहाँ तो 1 रेज़ टू पावर p है, एक ही टर्म. इसमें जनरलाइज करते हैं. 4 से एक कम यानी कि 2 स्क्वायर. यहाँ 2 रेज़ टू पावर 1 से स्टार्ट किया, 2 की एक पावर इंक्रीज होने से एक कम वाली टर्म यहाँ है. जैसे यहाँ 7 है, इट इज़ 2 स्क्वायर. तो अगर मैं 2 की एक पावर इंक्रीज करूँ तो वो क्या बनेगा? 2 क्यूब. 2 क्यूब में से -1 कर दो, दैट इज़ योर 7. तो इसका मतलब यहाँ हमने स्टार्ट किया था 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 से. तो 2 की एक पावर अगर इंक्रीज करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर n बनेगा. तो इसका मतलब ये क्या आएगा? 2 रेज़ टू पावर n में से एक कम उसकी रेज़ टू पावर p. लास्ट टर्म इसकी क्या होगी? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 रेज़ टू पावर p. ये किससे लेसर होगा? अगेन जनरलाइजेशन ऑफ दिस वैल्यू. जब हमने फर्स्ट टर्म ली दैट इज लेस देन और इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 0 रेज़ टू पावर p. जब हमने 2 टर्म्स ली सेकेंड स्टेप में 2 रेज़ टू पावर 1 रेज़ टू पावर p माइनस 1. इसको भी हम p माइनस 1 लिख लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि p इज ग्रेटर देन 1. तो ऑब्वियसली p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. ठीक है.
नाउ थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में हमारे पास वैल्यू आई 2 स्क्वायर रेज टू पावर p माइनस 1। जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 स्क्वायर थी तो यहाँ भी क्या आया 2 स्क्वायर रेज टू पावर p माइनस 1। यहाँ कितनी टर्म्स है हमारे पास अब 2 रेज टू पावर n माइनस 1। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1 रेज टू पावर p माइनस 1। ठीक है, क्लियर? ऐसे लिख लो या दूसरी तरह से लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर p माइनस 1 की पावर n माइनस 1। किसी भी तरह से स्टिच को लिख लो। अगर आपने 2 रेज टू पावर p माइनस 1 दी होल स्क्वायर लिखा है तो हियर यू कैन आल्सो राइट 2 रेज टू पावर p माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, नाउ अगर मैं इन सारी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को ऐड करती हूँ तो ऑब्वियसली उनका सम किससे लेसर होगा, जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स आ रही हैं उनके सम से लेसर होगा। सो फर्स्ट वी राइट डाउन ऑल द टर्म्स प्रॉपरली। व्हाट वी हैव, फर्स्ट स्टेप इज जिसमें हमने कितनी टर्म्स ली, ओनली वन टर्म, दैट इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 0 रेज टू पावर p माइनस 1। Second step in which we have taken 2 raised to power 1 terms, that is 1/2 raised to power p plus 1/3 raised to power p, that is less than 1/2 raised to power p minus 1। ठीक है, थर्ड स्टेप जिसमें हमने 2 स्क्वायर टर्म्स ली, that is 1/4 raised to power p, 1/5 raised to power p plus 1/6 raised to power p plus 1/7 raised to power p, this is less than 1/2 raised to power p minus 1 the square। ठीक है, सिमिलरली जो nth स्टेप था उसमें हमने कितनी टर्म्स ली, 2 raised to power n minus 1 and those terms are 2 raised to power n minus 1 raised to power p onwards up to कहाँ तक है 2 raised to power n minus 1 raised to power p and it is less than 2 raised to power p minus 1 raised to power n minus 1। So now we add the left hand side terms। क्या आएगी वैल्यू 1/1/1 raised to power p, 1/2 raised to power p, 1/3 raised to power p, इन सब का सम up to 1/2 raised to power n minus 1 raised to power p। किससे लेसर है ये, this is nothing but 1, तो it is 1 plus 1/2 raised to power p minus 1 plus 1/2 raised to power p minus 1 the square and so on up to 1/2 raised to power p minus 1 raised to power n minus 1। So now what is this? Sn क्या था, sequence of partial sum of the series 1/n raised to power p। अब ये उसी सीरीज की कितनी टर्म्स का सम है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स s2 raised to power n minus 1 टर्म्स का सम है। So how will you write it down? This is nothing but s of 2 raised to power n minus 1 which is less than this sum। और ये sum आप देख सकते हो, what is this sum? It is nothing but a GP, geometric series, जिसकी कॉमन रेशो कितनी आ रही है, द रेशो ऑफ दिस सीरीज इज नथिंग बट 1/2 raised to power p minus 1। अगर p 1 से बड़ा है, हमें गिवन क्या है, p is greater than 1, then obviously p minus 1 is greater than 0। ठीक है, तो it means 2 raised to power p minus 1 का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो obviously this number is less than 1। ठीक है, तो अगर ये नंबर लेस देन 1 है इसका मतलब इट्स ज्योमेट्रिक सीरीज विद रेशियो लेस देन 1। ठीक है, अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज है विद रेशियो लेस देन 1 देन इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स। अब पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जितने आपने स्टेप्स लिए थे उतनी ही इधर टर्म्स है। और you can see in other way that these terms are starting with 2 raised to power p minus 1 raised to power 0 से लेकर n minus 1 तक जा रहे हो, तो कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स। फाइन, सो raised to power n डिवाइड बाय 1 minus r, r is 1/2 raised to power p minus 1 and we know that 1/2 raised to power p minus 1 इज लेस देन 1, तो इसकी पावर जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो ये नंबर और छोटा होता जाएगा। इसका मतलब दिस नंबर इज लेस देन 1
एंड इट मीन्स दिस वैल्यू 1 माइनस अ नंबर विच इज लेस देन 1 करोगे तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो लेस देन 1. ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर p माइनस 1 से, so this is less than 1 upon 1 minus 1 by 2 raised to power p minus 1. So finally what we get, s of 2 raised to power n minus 1 is less than this, which is further less than 1 upon 1 minus 1 by 2 raised to power p minus 1. तो ये वैल्यू भी इससे क्या होगी, lesser. Now this is less than 1, therefore it is a finite value and we suppose this number is equal to k. It means हमारे पास क्या आ गया, s of 2 raised to power n minus 1 is less than k. So this is bounded above. बट मुझे क्या चेक करना था कि ये सीरीज कन्वर्ज करनी चाहिए व्हेन p is greater than 1. तो उसके लिए मुझे चेक करना था कि इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव है या नहीं. तो वो कैसे चेक करेंगे, यूजिंग दिस. एज वी नो दैट जो ये सीरीज है ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, देयरफॉर इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगा वो क्या बनेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना. इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगा वो क्या होएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. Now you can check this thing easily that 2 raised to power n minus 1 is always greater than equal to n for all n. It is an exercise for you to check this result and you can easily prove this by using induction. ठीक है, और अगर 2 raised to power n minus 1 n से या तो बड़ा है या उसके इक्वल है, तो और ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब जैसे जैसे ये सबस्क्रिप्ट की वैल्यू इंक्रीज होएगी वैसे वैसे जो सीक्वेंस ऑफ इसकी वैल्यू आएगी दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन एस ऑफ एन. ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब यही होता है कि अगर ये इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली एस ऑफ 2 रेज़ टू पावर एन माइनस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू एस एन. अब ये सी वैल्यू जो है इट इज बाउंडेड अबव बाय के, देयरफॉर एस एन इज ऑल्सो बाउंडेड अबव बाय के. As this result holds for every n, so this result also holds for every n. So what we finally get that Sn is less than k for every n. So it's a monotonically increasing sequence which is bounded above. Therefore, this sequence of partial sum converges. और अगर ये कन्वर्ज करता है तो ऑब्वियसली जिस सीरीज का ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो भी क्या करेगा, converge. So this also converges for p greater than 1. We have used this result. कहाँ use किया हमने p greater than 1 को, where the series is this 1 by 2 raised to power p minus 1 जो था वो हमारा क्या आया था, less than 1. कब आया, when p is greater than 1. Otherwise ये sum जो था वो finite नहीं होता, हो सकता है ये sum हमारा finite ही ना होता उस केस में. ठीक है, so it means if p is greater than 1 then this series converges. Now the second case is we have to check the convergence or divergence of the series when p is less than equal to 1. We split it into two parts, when p is equal to 1 and when p is less than 1. ठीक है, first we solve this for p equal to 1. अगर p 1 के equal है तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, 1 by n. It means it is nothing but 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 and so on up to 1 by n and so on. ठीक है, इस केस को हम बाद में डिस्कस करते हैं. So now second case we are taking when p is equal to 1 and make this case as third case. Fine. Now when p is equal to 1 our series is this. Now जिस तरह हमने पहले किया था वैसे ही दोबारा फर्स्ट स्टेप में now I am taking टू टर्म्स. कौन सी टर्म्स ली मैंने, 1, इसकी फर्स्ट टू टर्म्स क्या आएंगी, 1 प्लस 1 बाई 2. ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन हाफ. 1 प्लस हाफ, हाफ में कुछ ऐड ही किया होगा तो इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन हाफ. ठीक है, सेकेंड स्टेप में भी मैंने दो ही टर्म्स ली, कौन सी, 1 बाई 3 एंड 1 बाई 4. ऑब्वियसली 1 बाई 3 जो है वो 1 बाई 4 में ऐड हुआ है और प्लस 1 बाई 3 इज ग्रेटर देन 1 बाई 4. होगा ग्रेटर कि नहीं, कैसे, 4 इज ग्रेटर देन 3 तो ऑब्वियसली इट्स रेसिप्रोकल इज लेस देन 1 बाई 3. ठीक है, तो ऑब्वियसली
1/3 जो है वो 1/4 से क्या है, बड़ा, एंड 1/4 भी अपने आप के इक्वल है, सो आई कैन राइट इट एज बोथ आर greater than this value. So sum of these two is greater than this value. And what is this? It is nothing but 2/4, or you can say it is equal to 1/2. So sum of these two is greater than 1/2. In the second step, we have again taken two terms. Now in third step, we will take two square terms. अब 1/4 तक तो यहाँ कवर हो चुकी है, तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, 1/5, देन 1/6, देन 1/7, एंड फोर्थ टर्म इज 1/8. हमने 4 टर्म्स ले ली, एंड नाउ ईच टर्म इज ग्रेटर देन 1/8. कैसे, एक एग्जाम्पल करते हैं इसमें. जैसे 5 इज लेस देन 8, तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल 1/8 से क्या होएगा, बड़ा. ऐसे ही 1/6 भी 1/8 से बड़ा होगा, 1/7 भी, और 1/8 तो ऑब्वियसली 1/8 के इक्वल है ही. तो इन सब का सम किससे ग्रेटर होगा, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 से. It means it is greater than 4/8. 4/8 means 1/2. So it means इन चारों टर्म्स का सम भी 1/2 से क्या है, बड़ा. Now let's generalize this. हमने टर्म्स किस तरह से ली. फर्स्ट स्टेप में जो हमने टर्म्स ली, उसमें जो लास्ट टर्म है वो किस टाइप की है, दैट इज 1/2 रेज़ टू पावर 1. जो सेकेंड स्टेप में हमने टर्म्स ली, उसमें जो लास्ट टर्म है वो किस टाइप की है, दैट इज 1/2 रेज़ टू पावर 2. जो थर्ड स्टेप में हमने टर्म्स ली, उसमें जो लास्ट टर्म है वो किस टाइप की है, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 3. तो जो मैं nth स्टेप में टर्म्स लूँगी, तो उसमें लास्ट टर्म क्या होएगी, 1/2 रेज़ टू पावर n. फर्स्ट स्टेप में जो लास्ट टर्म है दैट इज 1/2 रेज़ टू पावर 1. सेकेंड स्टेप में जो लास्ट टर्म है यहाँ पे दैट इज 1/2 रेज़ टू पावर 2. मतलब जितना स्टेप नंबर है उतनी ही 2 की पावर है लास्ट टर्म. ठीक है, तो जब हम nth स्टेप लिखेंगे तो उसमें जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, 1/2 रेज़ टू पावर n. अब जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो कैसे लिखी, जो लास्ट स्टेप में 2 की पावर आई हमारे पास पिछले वाले स्टेप में, उससे नेक्स्ट टर्म ऑब्वियसली यहाँ पे. इसका मतलब दिस इज नथिंग बट 1/3 इज नथिंग बट 1/2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1. ठीक है, एंड 1/5 इज नथिंग बट 1/2 स्क्वायर प्लस 1. This is the term in second step, and this is the term beginning first term of the third step. इसका मतलब सेकेंड स्टेप में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, यानी कि जितना स्टेप नंबर है उससे 2 की पावर 1 कम. थर्ड स्टेप में जो यहाँ पे टर्म है, फर्स्ट टर्म है, उसमें 2 की पावर 2 है. थर्ड स्टेप है, पावर कितनी है, 2 की पावर 2. तो nth स्टेप में जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होएगी, 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 1. ठीक है, तो इतनी टर्म्स का सम हमारे पास nth स्टेप में आएगा, एंड ईच टर्म इज ग्रेटर देन दिस लास्ट टर्म. इन सब में भी यही किया कि हर टर्म जो है, इन सारे में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो सारी की सारी इससे क्या है, ग्रेटर. तो ऑब्वियसली इसमें भी हर टर्म 1/2 रेज़ टू पावर n से क्या होएगी, ग्रेटर. तो each term is greater than 1/2 raised to power n. अब ये कितनी टर्म्स बनेंगी, जब आप 2 रेज़ टू पावर n-1 तक टर्म्स छोड़ चुके हो, है ना. 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 1 से शुरू कर रहे हो, तो 2 रेज़ टू पावर n में से कितनी टर्म्स छोड़ी हमने, 2 रेज़ टू पावर n-1 टर्म्स वी हैव लेफ्ट. So it is nothing but 2 raised to power n-1 common 2 minus 1. So it is nothing but 2 raised to power n-1 terms. So sum of all these is what? 2 raised to power n-1 upon 2 raised to power n, which is nothing but 1/2. It means 1/2 raised to power n-1 plus 1 से लेकर 1/2 रेज़ टू पावर n तक का जो सम है वो भी 1/2 से क्या है, ग्रेटर. फाइन. सो नाउ इफ वी ऐड ऑल दीज लेफ्ट हैंड साइड्स, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ नथिंग बट 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3
and so on up to 1 by 2 raised to power n का sum, which is greater than 1 by 2 plus 1 by 2. How many times? जितने steps थे. कितने steps थे? n steps. तो इसका मतलब ये कितनी बार ऐड हुआ? n times. So it is nothing but n by 2. Fine. So now what is this? It is nothing but s of 2n, which is greater than n by 2. And as n approaches to infinity, this also approaches to infinity. इसका मतलब जो ये वैल्यू है s of 2n, it is not bounded above. जो ये sequence of partial sum है हमारे पास, this is not bounded above. When n p is equals to 1, तो जो sequence of partial sum बना वो bounded above नहीं. अगर ये bounded above नहीं है तो इसका मतलब जो corresponding हमारी series है that will also not converge. और अगर positive term series converge नहीं करती तो क्या करती है? Diverge. So what we have done for p equal to 1, this series, that is 1 by n series, diverges. Now last case is when हमने एक third case बना दिया था, when p is less than 1. अगर p 1 से छोटा है then n raised to power p is obviously less than n, or we can say the reciprocal of this is greater than 1 by n. और हमने कंपैरिजन टेस्ट किए हैं सीरीज में, अगर लोअर वाली सीरीज डाइवर्ज करती है देन ऑब्वियसली अपर सीरीज जो आएगी वो भी क्या करेगी? डाइवर्ज. देयरफॉर वी कैन से फॉर p इज लेस देन 1, जो हमारी सीरीज है 1 by n raised to power p, दिस डाइवर्जेस. फाइन. सो दिस इज योर p सीरीज. क्या कहा हमने p सीरीज में कि अगर 1 by n raised to power p where n goes to 1 to infinity, this series is said to be a p series. और ये सीरीज कन्वर्ज करती है अगर p 1 से बड़ा है, और अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये सीरीज क्या करती है? डाइवर्ज. ये सीरीज बहुत यूज करते हैं हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए. सो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि p सीरीज कब कन्वर्ज करती है और कब डाइवर्ज करती है. Now in next lecture we will do questions based on this, then you will understand what is the importance of this series. Fine. This is all about today's lecture. Thank you very much.